Okay, guys. So in the last class, we covered chemical reactions involved. So this is new. I'm going to tell you here that change of state. So whenever a chemical reaction is taking place, okay, so there is a change of state, there is a change of color, there is a change of temperature and evolution of gases. If you remember, I said a few times like the CO2 will be released, hydrogen will be released, so that is the evolution of gases evolve. Okay, and यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या फिर लिक्विड से गैस जा रहा है या फिर गैस या फिर एक्वस जा रहा है. So we are going to understand more about this in a few minutes. Okay, and we did this in last class. Reactants who take part in chemical reaction, right, and products, the substance which are formed in a chemical reaction. तो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट क्या कहलाता है आपका? Reactants, and the right hand side part is what? Product, right? This is the right hand side part, just remember that. So example, when magnesium ribbon burnt in air, oxygen gives us magnesium oxide. For this we have done this in lab also. If you remember last year only in lab we burned the magnesium wire, like the strip, like पतली से एक strip burn की थी हमने magnesium की. So you saw exothermic reaction because बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई थी, बहुत सारा टेम्परेचर रिलीज हुआ था, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था, और वहां पर क्या हुआ था, एक ऑक्साइड निकल के आया था, मतलब जो ऐश बनता है, राइट, ऐश. तो याद रखना, metals, remember this point, okay, because this will help you in later also. Metals reacts with oxygen, okay, metals का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है एंड दे फॉर्म व्हाट? मेटल ऑक्साइड बनता है. याद रखना, मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनता है, ये याद रखना है. तो ऑक्साइड का मतलब, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है. इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड. Easier writing is difficult without my pen. So metal oxide बनता है. This metal oxide is basic. अभी आप समझ सकते हो एसिडिक और बेसिक में क्या होगा. बेसिक मतलब क्षारीय बेसिकली, कि जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है. लाइक द अगरबत्ती, कभी टच किया आपने, अगरबत्ती का जो रेसिड्यू होता है उसको अगर आप टेस्ट करके देखो कैसा फील होता है, तो दैट इज बेसिक, बेस कहते हैं उसे, ठीक है. तो मेटल क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड, एंड इट्स बेसिक. इट्स बेसिक, कड़वा होता है. याद रखना कि उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत कड़वा होता है, क्षारी होता है, ठीक है. उसको हिंदी में क्षारी बोलते हैं. यही अगर नॉन मेटल होगा, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा. नॉन मेटल क्या करता है? एसिडिक. एसिडिक मतलब यू नो द पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा, थोड़ा खट्टा होगा, ठीक है, टेस्ट उसका एसिडिक होगा, ठीक है. So this is what I wanted you to revise here, and now we can go ahead and we are going to revise this. We have already done this in the previous class. We are going to do this again. Chemical reaction. So in a chemical change, a chemical reaction takes place. Just one second. Okay, cool. So here we once again, guys, just keep yourself muted, otherwise there will be 2 3 no. Okay, just wait, I'll just put everyone mute. Yeah, cool. So definition, chemical reaction is a process in which new substance, मैंने बता चुका हूँ कि कंपाउंड बनता है यहाँ पर, ओके, कंपाउंड बनता है. इन दिस केमिकल रिएक्शन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक है. केमिकल रिएक्शन में क्या बनता है? कंपाउंड बनता है. अ कंपाउंड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 or more than 2 elements, right? Compound is combination of 2 or more than 2 elements where a new substance is formed. Where a new substance is formed. You remember? Compound में क्या होता है? A new substance is formed. In compound, a new substance is always formed in compound. Okay? तो जब नया substance बनेगा तो उसकी नई property होंगी different from the elements, the reactants. तो reactants product की जो property होगी that will be different from the reactants. So you need to remember that. It could be different in terms of what? स्टेट के डिफरेंस में. अभी अभी जो पढ़ा, टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है. तो ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं वहां पर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी और रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी में. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस नाउ, एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. ओके, सो फॉर दिस
हियर वी गो, वी टेक अ एग्जांपल। सो क्या होता है इसमें कि रिएक्टेंट्स होते हैं एंड प्रोडक्ट होते हैं जो कि फिजिकल स्टेट मेंशन किया जाता है। तो तरीके क्या है, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो मैं बेसिक वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे और भी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सो हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, दिस इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, दिस इज अबाउट राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो क्या करते हैं वहां पर कि रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स के फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। तो अगर ऑक्सीजन गैस स्टेट में होगा तो उसको जी लिखेंगे, स्मॉल जी के साथ डिनोट करते हैं। अगर सपोज करें हमने कोई जिंक ले लिया, मेटल है तो सॉलिड में होगा, तो वहां पर एस डिनोट करेंगे, उसके बगल में एस। मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू बताएंगे भी कैसे करना है। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस। लिक्विड होगा तो लिक्विड। एक और होता है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हियर वी कैन टेक, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर दिस 3 मैग्नीशियम रिबन बर्nt इन एयर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्योंकि बर्न करने के लिए, फायर के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन इज नेसेसरी, राइट, ऑक्सीजन इज नेसेसरी। सो मैग्नीशियम, वी विल राइट मैग्नीशियम, एटॉमिसिटी ऑफ मैग्नीशियम इज 1, मेटल है, मेटल की एटॉमिसिटी 1 होती है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ, मतलब बर्न करना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना है इसको। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहां पर बर्न किया ऑक्सीजन के साथ। तो बताओ जरा प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा। कैन एनीवन गेस एंड टेल मी कि प्रोडक्ट क्या होगा। एनीवन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर। व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट हियर, एनीवन। लेट्स सी इन द चैट बॉक्स if you can guess it. Yes, I'm waiting for a response here. What would be the product here? Okay, Mg2O, आदित्य सिंह, अजीत सिंह, Mg2O। ओके, लेट्स सी। सो मैंने कल आपको बताया था कि जब एलिमेंट्स बोलते हैं तो Mg यहां पर क्या है, एक एलिमेंट है। वेट, आई चेंज द कलर ऑफ दिस। So Mg is what? Mg is a element here. It's a element. It's an element here. Okay. ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है, राइट, एलिमेंट है। तो एलिमेंट की हम लिखते हैं एटॉमिसिटी, एलिमेंट का हम लिखते हैं एटॉमिसिटी। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, किसके बेस पे, वैलेंसी के बेस पे। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा, फिर से बता रहा हूं मैं यहाँ पर। Mg का देखो, वी विल राइट इट लाइक दिस। ओके, वी विल राइट इट लाइक दिस। वी विल राइट Mg। ओके, here we will write oxygen. What is the valency of magnesium? What is the valency of magnesium here? Mg। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है, 2 है, 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 2 है, 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट हियर Mg2O2, Mg2O2। बट आपको भी पता है कि यहां पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो बेसिकली द प्रोडक्ट यू विल गेट हियर इज MgO। 2 हट जाएगा वहां से, दोनों में सेम है तो Mg2 का कैंसिल हो जाएगा, आपको भी पता कॉमन आता है। MgO विल बी द प्रोडक्ट, MgO। याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक है। हाँ हाँ अंकित सही है, अभी आप सही बोलो उसको। वो नेक्स्ट में आ रहा है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं अंकित, ठीक है। वो आगे आने वाला है, डोंट वरी, आगे आने वाला है। बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। ओके, यस यस, अभी के लिए वो आगे आएगा। नाउ वन मोर थिंग इज हियर, एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। एक्वस मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज वाटर में डिजोल्व होके है तो उसकी जो स्टेट बताएंगे हम वहां पर, क्या बताएंगे, मैग्नीशियम की स्टेट क्या बताएंगे, यहाँ पर सॉलिड लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे सॉलिड को, साइड में इसके सॉलिड लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे हम सॉलिड लिखेंगे। we will write S here, we will write it like this, solid। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो विल राइट G, विल राइट G। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या मिलेगा हमें, कोई बता सकता है।
सॉलिड मिलेगा, क्योंकि बर्न हो रहा है ना, जो जो रेसिड्यू बचेगा वो सॉलिड बचेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर से S। So this is how we will write the chemical equation. Okay, we will learn more about it. Okay, so don't worry, just one by one. एक्वस सॉल्यूशन क्या है, मैंने बताया कि आपने सॉलिड तो समझ लिया, सॉलिड को कैसे डिनोट करेंगे, लिक्विड भी समझ गया होगा कैसे डिनोट करेंगे, गैस को भी समझ जाओ कैसे करेंगे, ठीक है। अगर एक्वस आएगा तो AQ लिखेंगे अगर कोई भी एक्वस सॉल्यूशन आएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाईली कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी होती है एसिड की वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसको डाइल्यूट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डाइल्यूट बनाते हैं, उसको थिन करते हैं। डाइल्यूट मतलब क्या करते हैं, थिन करते हैं। तो थिन बनाने के लिए क्या करना होता है, उसको जो हम लैब में देखते हैं कंसंट्रेटेड वाला हम यूज नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड वाला बहुत खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, स्ट्रांग होता है वो। तो डाइल्यूट बनाते हैं उसको। डाइल्यूट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम वाटर को मिक्स करते हैं। वी मिक्स द वाटर, हम क्या कर देते हैं, वाटर को उसमें थोड़ा मिक्स करते हैं। तो वाटर को जब मिक्स किया हमने, देखो एक सेकेंड ना, वी मिक्स द वाटर। सो वाटर को जब हमने मिक्स किया तो वो क्या बन गया, वो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो क्या होता है, वहां पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। When the solvent is water in any solution, then the solution is called as aqueous. Aqua means water. So the solution is called aqueous. So we will write, हम कैसे लिखेंगे उसको, so we will write it like this. HCl के बगल से हम क्या लिख देंगे, AQ लिख देंगे। तो याद रहेगा कैसे डिनोट करना है सभी को, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस में कैसे बताना है सभी को, इजी है। विल यू रिमेंबर दिस, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, everyone, has everyone understood, guys? I would love to hear from everyone. Okay, तो कैसे डिनोट करना है, अगर सॉलिड होगा तो यू विल डिनोट इट बाय S, लिक्विड होगा तो यू विल डिनोट इट बाय L, गैस होगा तो G, स्मॉल g, और अगर एक्वस है तो AQ। सारे स्मॉल लेटर्स में डिनोट करने हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं अजीत, कि अगर वाटर में डिसॉल्व करके यूज कर रहे हो, कोई भी केमिकल, कोई भी एलिमेंट अगर वाटर में डिसॉल्व करके यूज कर रहे हो, वाटर में डिसॉल्व करके यूज कर रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिले होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो डिसॉल्व होने वाला होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें वो डिसॉल्व हो रहा होता है। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर में। तो वाटर में कोई भी चीज डिसॉल्व होकर जो सॉल्यूशन बनेगा, जो एक प्रोडक्ट निकल के आएगा, सॉल्यूशन बनेगा, कंपाउंड। ओके, कंपाउंड का ही पार्ट है ये सॉल्यूशन। तो वो क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे उसको, एक्वस बोलते हैं, ठीक है। अभी क्लियर है जी? We'll go ahead and we'll take more examples to understand this better. And जो हाँ, yes अजीत करेक्ट है, HCl will be solute. So the HCl concentrated will be the solute. जब वो वाटर से मिक्स होगा तो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा, ठीक है। उसको थिन करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, वाटर से मिक्स कराते हैं। चलिए, तो विल टेक मोर एग्जांपल्स नाउ। कैसे लिखना है केमिकल रिएक्शन को, अभी खत्म नहीं हुआ है, वी हैव मोर एग्जांपल्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। So a few steps I'm going to show you from the textbook only, now from the textbook, and let me know if the textbook is clearly visible for everyone. Okay, so I'm going to use the textbook now. I'll share the another screen. Okay, here we go. I hope you all can see the screen clearly. Let me know once the screen is clear for everyone, because this is important. And if you have the textbook in front of you, that will be great, like everyone can see, right? It will be really great if you have the textbook in front of you only. Okay, I think it should be visible for everyone. अभी और clear हो गया थोड़ा सा? Yes, is this clear? Right? Is it clear for everyone, guys? Can everyone see this textbook, or if you have textbook in front of you, anything is fine? Okay, तो चलिए पढ़ते हैं पहले यहाँ पे कि in a chemical equation
द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ओके, while the product on the right hand side, right? Just give me a second guys, just ओके ओके। सो तो हम इसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, राइट, और फिर क्या करेंगे, एक डायरेक्शन एरो यूज करते हैं, राइट, दोनों को सेपरेट करने के लिए हम वी यूज द एरो हियर, राइट। सो आई होप दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है कि दोनों को प्लस रिएक्टेंट्स, अगर एक से अधिक रिएक्टेंट्स हैं तो वी यूज द प्लस साइन टू सेपरेट देम, राइट, टू ऐड देम। और यहाँ पर इक्वेशन 2 में यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आप यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट मोर, ओके, ये चलेगा हमें, ये आप यू कैन रीड इट लेटर आल्सो। द थर्ड स्टेप इज की टू केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव एंड फिजिकल स्टेट। अभी जो हमने पढ़ा फिजिकल स्टेट बनाना दिखाना होता है, इंडिकेशन करना होता है, ठीक है। तो अगर गैसियस लिक्विड और सॉलिड स्टेट में है तो उनको कैसे लिखते हैं, स्मॉल जी, स्मॉल एल और स्मॉल एस से हम डिनोट करते हैं। अगर कोई भी अगर गैस है, कोई भी गैस है, अगर वो रिलीज हो रही है, रिमेंबर दिस, अगर जैसे मैं बोलूं कि हाइड्रोजन गैस विल रिलीज, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो वहां पर रिलीजिंग का जो साइन होता है वो होता है ये वाला साइन, पॉइंटिंग अपवर्ड्स, अपवर्ड, ऊपर की तरफ पॉइंट करता हुआ एरो दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाले इक्वेशन में CaCO3, यहाँ पर इस इक्वेशन में ये देखो, यहाँ पर CaOS स्मॉल, सॉलिड में देखो ये दो, ये भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, और यहाँ पर CO2 इज रिलीजिंग, तो रिलीज हो रही है, तो उसको किससे डिनोट किया गया है, एक एरो से पॉइंटिंग अपवर्ड। सो आई होप दैट इज क्लियर। यहाँ पर एक और चीज आती है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, चलो आराम से। इफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इनसॉल्युबल सॉलिड, अगर वो सॉल्यूबल ना हो, मतलब वो सॉल्यूबल डिसॉल्व नहीं होगा, सपोज करो, ठीक है, इनसॉल्युबल है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट बच रहा है, तो इंस्टेड ऑफ एस इंडिकेशन इज गिवन बाय SR, मतलब कि वो सेटल होने वाला है, नीचे जाके सेटल हो जाएगा, बिकॉज वो इनसॉल्युबल है, मतलब कि वो डिसॉल्व नहीं होगा। Ajit is saying the product came on the left hand side. Which example, Ajit? Which example? Oh, अरे अजीत, so there is a reaction जहां पर उसको प्रोडक्ट से बाकी चीजें सेपरेट करनी थी, yes, बाकी चीजें उसको सेपरेट करनी थी, that's why this type of reaction is there, okay, don't worry। यहाँ पर इनटेक क्या है उसका, इनटेक यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको सेपरेट करना है। हीटिंग से क्या होगा, हीटिंग से सेपरेट होगी ना चीजें। जैसे सपोज करो एक वाटर में, एक ग्लास वाटर में आपने सपोज करो एक हाफ ग्लास शुगर मिक्स कर दिया, तो आपका एक प्रोडक्ट बन गया। अब मैं बोलूं दोनों को सेपरेट करो, तो कैसे सेपरेट करोगे कि हीटिंग करके, हीटिंग करोगे तो वाटर बॉईल हो जाएगा और वहां पर शुगर क्या होगी, नीचे जम जाएगी, इनसॉल्युबल है ना, तो वो जम जाएगा, नीचे जम जाएगा, राइट, वो निकल के प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जम जाना, तो वही ये सिंबल है यहाँ पर, एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड, प्रेसिपिटेट, जब नीचे कोई चीज बच जाएगी, जो नहीं सॉल्युबल, वहां पर नहीं डिसॉल्व हो रही होगी, वो नीचे क्या होगी, जम जाएगी, तो यहाँ पर ये साइन दिखाएंगे एरो पॉइंटिंग। तो उस केस में क्या हुआ, जो आपका प्रोडक्ट था वो तो मिक्सचर था, एक कंपाउंड था, राइट, मिक्सचर सपोज कर लो, और वहां पर हमने उसको हीटिंग करके, ये हीटिंग का सिंबल है, जब भी किसी रिएक्शन में हीटिंग की जा रही होती है, ठीक है, ओके, हीटिंग अगर करें तो वहां पर डेल्टा का साइन यूज करते हैं, डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, वी कॉल इट डेल्टा, वी कॉल इट डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ हीटिंग। अगर कोई भी रिएक्शन में हीटिंग होने वाली है तो एरो के ऊपर डेल्टा लिखा जाता है। if the heating is taking place in a reaction, then the delta is kept on the arrow or written on above the arrow or above the arrow, okay। तो यहाँ पर हीटिंग का हो गया, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा और कुछ एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि देखो यहाँ पर जो CuSO4 है ये एक टाइप का एसिड है, ओके, कॉपर सल्फेट, ओके, कॉपर सल्फेट एक एसिड है, तो इसको भी बताया ना
डाइल्यूट फॉर्म में रखा जाता है, डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म में रखना मतलब उसके वाटर उसमें मिक्स किया गया है। वाटर मिक्स करना मतलब उसको थिन बनाने के लिए, जिससे उसकी इंटेंसिटी जो है, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो थोड़ा कम हो जाए। तो एक्वस लिखेंगे, वहां पर क्या लिखेंगे, वी विल राइट एक्वस। अभी क्लियर है थोड़ा? इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन गाइस? सो वी कैन गो अहेड। वी विल, अभी क्या होने वाला है, वी विल लर्न, वी विल राइट मैनी ऑफ द इक्वेशंस, बहुत सारी इक्वेशंस लिखेंगे हम। ओके, सो बहुत सारी इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हम धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर। ओके, एरो साइन ऊपर की तरफ है मतलब गैस रिलीज हुई है, एरो साइन डाउनवर्ड है मतलब कुछ बच गया है, प्रेसिपिटेट मतलब कुछ बच गया है, नीचे रखा गया है, राइट। और अगर डेल्टा लिखा हुआ है मतलब उसमें डेल्टा है मतलब उसमें हीटिंग की गई है, या फिर डेल्टा के बाद हीट लिखा गया है। ये देखो यहाँ पर हीट रिलीज होना, ये हीट रिलीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हीट ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, या तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रही होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रही होगी, तभी इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीजेस, राइट। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीजेस, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीजेस, वहां पर हीट रिलीज होती है, तो इसलिए यहाँ पर हीट का सिंबल दिखाया गया है, बिकॉज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट विल रिलीज। मतलब कि आप याद करो लास्ट ईयर जब हमने लैब में, when in the lab, okay, in lab, एक सेकेंड ना, हाँ, तो लास्ट ईयर लैब में जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था, ओके, जब मैग्नीशियम को बर्न किया था तो बहुत सारा टेम्परेचर हीट निकल के बाहर आ रही थी, राइट, बहुत सारा, एक तो लाइट हीट के फॉर्म में बाहर आ रहा था, राइट। ओके, तो हीट बहुत सारा बाहर आ रहा था, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट आएगा तो वहां पर हीट शो करेंगे। तो ये हुआ राइटिंग के तरीके, ठीक है। नाउ वी कैन गो अहेड। यहाँ पर और भी कुछ है जहां पर डाइल्यूट, ये देखो यहाँ पर डाइल्यूट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्वस लिखा गया है, कंसेंट्रेटेड फॉर्म का बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे सारी चीजें, यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन को तेज कराना है कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो, फास्ट हो, तो वहां पर क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे एक रस्टिंग केमिकल रिएक्शन है, सपोज करो रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन है, राइट, रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन। उसको फास्ट कराने के लिए क्या करना है, क्या चाहिए उसको, मॉइस्चर मिल जाएगा, मॉइस्चर मिल जाएगा तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। आई नो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नॉट गुड ऑल्सो, बट वहां पर एक कैटलिस्ट का काम क्या कर जाएगा, मॉइस्चर एक कैटलिस्ट का काम कर जाएगा कि उससे रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। यहां पर सभी को समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं दिखाने वाला हूं यहाँ पर पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यहाँ पर मास का जो सिंबल है वो देखो जरा, कितना वेट है, दोनों का वेट सेम है, 300.23 ग्राम, 300.23 ग्राम, दोनों का वेट सेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिकल रिएक्शन लिखने में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो इन होता है, इनटेक होता है, यहाँ पर जितना रिएक्टेंट होता है उसका जो वेट इन्वॉल्व होगा, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स वेट, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट्स वेट। मतलब किसी के फॉर्म में भी, चाहे हीट के फॉर्म में निकल रहा है, चाहे जैसे फॉर्म में जा रहा है, लेकिन वेट जो होता है, जो प्रोडक्ट का वेट होता है, दैट रिमेन्स सेम फॉर बोथ, दैट रिमेन्स same for both. So you will remember this, okay? The law of conservation of mass says the mass can neither be created, mass can nor be destroyed, mass remains same. Okay, जब भी मतलब जब यहां से इनटेक इन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मास क्या रहेगा, सेम रहता है, मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मास विल रिमेन सेम। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट, ओके। सो इज दैट क्लियर? Yes, hydrogen can be written as H2 only. Hydrogen will not be written as H. Ajit, hydrogen will not be written as H. It will be written as H2 only. Hydrogen will always be written as H2 only because hydrogen is diatomic. चलिए आगे बढ़ते हैं. I will stop sharing this screen and I will go back to the PPT again. Okay, and we will learn from there now. We'll take the part from there now. Okay, here we come.
So I hope you understood the basic writing steps to write chemical equation, जहां पर हमने सीखा कि सिंबल कैसे यूज करते हैं, ठीक है, हीटिंग का कैसे यूज करना है, पॉइंट अगर एरो ऊपर की तरफ अगर पॉइंट करा तो उसको उसका मतलब क्या है वहां पर, राइट। एंड नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट राइटिंग इट, ओके, हाउ डू वी राइट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हियर व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्वेशन बिलो। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, मैं फिर भी एक बार पूछूंगा सभी से, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ये जो जोनो है आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक H2SO4 बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। एंड हु कैन टेल मी द व्हाट इज द सिंबल फॉर आयरन हियर। आयरन को कैसे लिखते हैं केमिकली, हाउ डू वी राइट आयरन केमिकली, how do we write iron chemically? Fe. Very good, Amit. Amit says Fe. Yes, iron chemically element के फॉर्म में आयरन को Fe डिनोट किया जाता है, ओके, Fe डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पर Fe लिखेंगे, इसी को फेरस भी बोलते हैं, और आयरन, फेरस और आयरन, वी राइट इट लाइक Fe। याद रखना एक और चीज, एलिमेंट है, जब अभी अब चलो आगे सीखते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। हाँ चलिए समझते हैं इसको थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ड इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन में बदलना, ठीक है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया, मैं एक और एग्जांपल लेके आपको और क्लियर करवाना चाहता हूं, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गए यहाँ पर, और ये हमारा ये क्या थे, दिस विल बी आर प्रोडक्ट। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन इज रिलीजिंग, तो इसको सिंबल ऐसा मिलेगा, एरो अपवर्ड, पॉइंटिंग अपवर्ड। चलिए, तो हाइड्रोजन का याद रखना, अब यहां पर जब एलिमेंट लिखना होता है हमें, when we write elements, okay, so you need to remember we will write atomicity, elements के लिए we will write atomicity, okay, atomicity। now समझते हैं atomicity है क्या, let's understand what is atomicity। ओके, एंड व्हेन वी राइट प्रोडक्ट, याद रखिएगा कंपाउंड जब हम कंपाउंड लिखेंगे तो हम देखेंगे वैलेंसी कितनी होगी उसकी, ध्यान रखिएगा वैलेंसी मैच करेंगे हम, जब हम कंपाउंड लिखेंगे तो उसका क्या देखेंगे, वैलेंसी, दोनों एलिमेंट्स का, अगर दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो उनकी वैलेंसी कितना है उसके बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, एंड इफ यू रिमेंबर दिस इट विल बी ऑलवेज इजियर फॉर यू टू बैलेंस द इक्वेशन और टू राइट द इक्वेशन, ओके। So we will look at the valency. Now let's understand, okay, चलिए आप समझते हैं कि एटॉमिसिटी है क्या। मैंने बोला एटॉमिसिटी, मैंने कल भी बोला था कि एटॉमिसिटी हम आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी है क्या, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप समझना जरा, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स that join together to form a molecule, okay, मतलब कि कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, okay, how many atoms join together to form a molecule of the element, मतलब कितने एलिमेंट, कितने एटम्स मिलकर कितने एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल, एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, सपोज करो, ठीक है, कितने एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल का, सॉरी एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। सपोज करो एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बोलते हो, आपने बोला एक ड्रॉपलेट है वाटर का, एक ड्रॉप है, ठीक है, एक ड्रॉप है वाटर का, तो उसमें कितने एटम मिलकर उस ड्रॉप को बनाए होंगे, ऐसे समझो। इमेजिन करो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज 1 मॉलिक्यूल फॉर वाटर, एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने एटम मिलकर उस ड्रॉप को बनाए होंगे, दैट इज एटॉमिसिटी, दैट इज एटॉमिसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। तो जितने भी मेटल्स हैं, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं बिकॉज इसका फॉर्मूला जो है वो मतलब का तो है नहीं, फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट, तो वो ज्यादा अभी काम का नहीं हमारे इस अभी के टर्म में, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि समझना कैसे है। मेटल्स की जो है, मेटल्स, all metals, okay, just note it down somewhere, okay, very important, so कभी भी आपको मिस्टेक नहीं होगा, all metals
have एटॉमिसिटी 1, मतलब वो हमेशा उनका एक एटम इनफ होता है, एटम मेटल्स का एक एटम इनफ, एक ही एटम मॉलिक्यूल बनाता है, मेटल्स का एक ही एटम मॉलिक्यूल्स बना लेता है। ओके, मेटल्स का एक ही एटम मॉलिक्यूल्स बना लेता है। सो यू रिमेंबर दैट नाउ, ठीक है। और जितने भी इनर्ट गैसेस होते हैं, इनर्ट गैसेस उनकी भी एटॉमिसिटी कितनी होती है? 1। इनर्ट गैसेस की भी एटॉमिसिटी क्या होती है? 1। मैं ये क्या करेंगे पीपीटी में, आई विल पुट दिस लेटर इन द पीपीटी एंड आई विल शेयर दैट विद यू। तो ऑल द गैसेस, इनर्ट गैसेस, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट इनर्ट गैसेस, नॉट एनी अदर गैसेस। जीरो ग्रुप वाले जो गैसेस है, मतलब ग्रुप 18 का जो है, जो ग्रुप 18 है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 18। तो इनर्ट गैसेस की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 1। इनर्ट गैसेस की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 1। अब बचे नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स की एटॉमिसिटी वेरी करती है, नॉन मेटल्स की एटॉमिसिटी वेरीज। ओके, फॉर नॉन मेटल इट वेरीज। वो क्या होती है? 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है और ज्यादा भी 8 भी होती है, ठीक है। तो वो वेरी करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। ट्राई से ही हम बोल देते हैं पॉलीएटॉमिक, जैसे आपने पढ़ा था कि लीनियर और बाइनोमियल और पॉलिनोमियल, ऐसे पढ़ा था। तो वैसे ही मोनोएटॉमिक, सिंगल एटम से एक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ट्राइटॉमिक 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, और पॉलीएटॉमिक मतलब कि 3 से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक पॉली, 3 या 3 से अधिक पॉलीएटॉमिक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है, नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज रिटन एज H2। That is why hydrogen is always written as H2। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, गैस है, इसके भी दो मतलब कि इसके भी 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज ऑलवेज रिटन एज H2O। ओके सॉरी, O2, सॉरी, ऑक्सीजन इज ऑलवेज रिटन एज O2। और वाटर को कैसे लिखते हैं? H2O। सो तो बनता क्या है यहाँ पर? H2O। क्यों बनता है H2O? मैं एक बार करके भी दिखाता हूं, समझो जरा। यहाँ पर देखो, समझो कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कंपाउंड है ना, एलिमेंट का हम एटॉमिसिटी देखा, और वो कंपाउंड का प्रोडक्ट जो कंपाउंड है उसकी क्या देखेंगे? वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दोनों को हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ, तो वी विल गेट H2O। दैट्स व्हाई वी राइट H2O। So we write H2O for hydrogen. Oh, sorry, water. Okay. So we write H2O. Similarly, let's come to sodium. Another example. Sodium is a metal. Okay. So sodium is a metal. Sodium जब metal है, okay, तो metal की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 1। तो सोडियम will be written as just Na1। क्लोरीन क्या है? गैस है, क्लोरीन की भी एटॉमिसिटी होती है 2। तो क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2 होने की वजह से क्या लिखते हैं? NaCl। यहाँ पर Na और Cl2 लिखते हैं उसको, क्लोरीन को, एटॉमिसिटी उसकी 2 है, तो 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं क्लोरीन का। तो सोडियम क्लोराइड का क्या बनता है? पहले आप इसको ऐसे समझ लो, आई विल जस्ट चेंज द कलर। तो Na इज द सोडियम, क्लोरीन, क्लोरीन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होती है? क्लोरीन की 287, 1 होती है, और सोडियम की भी वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो दोनों की जब वैलेंसी 1 बना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? Na1Cl1, तो दैट इज NaCl मिलेगा। NaCl we will get NaCl। so this is how we will write chemical equation। मतलब केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। अगर एलिमेंट होगा तो क्या देखेंगे? उसकी एटॉमिसिटी देखेंगे, और अगर प्रोडक्ट बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसको क्या देखेंगे? वैलेंसी से मैच करेंगे। वी विल मैच दैट विद द वैलेंसी। सो इज दैट क्लियर नाउ गाइस? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? थोड़ा बहुत we will learn more about it, don't worry, we are going to learn more on this। I'm just asking, is this somehow थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा
विल लर्न मोर अबाउट इट। ओके, थोड़ा सा डीप पे जाकर भी समझेंगे और एग्जांपल्स लेंगे तो और क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, वी आर गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, याद रखना मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख दिया, देख सकते हो यहां पर कि क्या रहेगा, एटॉमिसिटी और कंपाउंड का वैलेंसी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ सिमिलरली ये हमने ऑलरेडी कर लिया। नाउ दिस इक्वेशन अभी अभी हमने देखा कि H2O2 और H2O बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O तो फॉर्म कर लिए, बट डू वी कॉल देम अ बैलेंस्ड इक्वेशन? क्या ये करेक्ट इक्वेशन करेक्ट है? इज दिस इक्वेशन अ करेक्ट इक्वेशन? इज दिस इक्वेशन कंप्लीटली करेक्ट? विल वी कॉल इट कंप्लीटली करेक्ट इक्वेशन? Would we call it a complete correct equation? Yes guys, anyone? Let's hear from some of you. Amit is saying no, Ajit is saying yes. So we are going to understand how whether it is correct. So basically this is not a correct equation. We need to balance this. कैसे बैलेंस करेंगे हम समझेंगे, एंड व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, वी विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल। ओके, बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बैलेंसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझो उसको बैलेंसिंग को, कि जब आप सब्जी लेने आते हो, वेजिटेबल्स आप लेने गए, सपोज करो वेजिटेबल्स लेने गए, आपने 1 kg पोटैटो ले लिए, लेकिन एक साइड वेट ज्यादा कर दिया उन्होंने और एक पोटैटो कम है, तो आप क्या बोलोगे, भैया थोड़ा सा और पोटैटो रखिए, बिकॉज अभी बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, दोनों अभी बराबर नहीं है। सो दैट इज व्हाई बैलेंसिंग द इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा रीजन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन, नॉट रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में नहीं, नॉट रियल लाइफ में भी, या सॉरी, इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना मैटर रिएक्टेंट का बन के जाएगा, जितना मैटर रिएक्टेंट बन के जाएगा, उतना ही मैटर आपका क्या बन के आना चाहिए, प्रोडक्ट बन के आना चाहिए। उतना ही मैटर, अगर आप उसको वेट करते हो तो दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया। तो बैलेंसिंग इसलिए भी जरूरी है, अगर प्रोडक्ट में ज्यादा बैलेंसी हो गई, मतलब प्रोडक्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा, राइट, प्रोडक्ट का साइज ज्यादा हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा, तो आपका रिएक्टेंट कम रह जाएगा। यहाँ पर बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दीज टू रीजंस। ओके, तो पहला क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो बोलता है कि बैलेंस होना चाहिए, और दूसरा क्या बोलता है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए, बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ओके, चलिए समझते हैं इसको और समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, कैसा दिखेगा, मैंने ये ऑलरेडी आपको दिखाया, मैंने फिर भी इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो वेट बराबर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वेट बराबर है, एंड हाउ विल यू डू दैट, कैसे करना है हमें? तो हम एक साइड लिखेंगे एलिमेंट, जितने भी रिएक्टेंट है एलिमेंट, फिर रिएक्टेंट लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, एटॉमिसिटी लिखेंगे, और प्रोडक्ट लिखेंगे राइट हैंड साइड में। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा और तरीके से। ठीक है, तो मैं co-host का वीडियो ऑन कर रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन दैट। आई एम ओपनिंग द co-host वीडियो, स्वाइप करो, आपको co-host का वीडियो मिल जाएगा, एंड फोकस ऑन दैट नाउ। ओके, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर ऑन दिस। ओके, सो हियर वी गो। चलिए just give me a second. Okay, here we go. चलिए तो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं मैं, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंसिंग a chemical equation. Can you all see the video, course video? Swipe it, you will find the course video, balancing the chemical equation. Okay, we are going to understand this now. So let's see this. Suppose करो हमने वाटर का रिएक्शन ले लिया, हमने बोला H2 is the diatomic, oxygen is diatomic, so ये लिख दिया, and then we write H2O. Okay, so how will you do this? We will write element, पहले एलिमेंट कितने हैं, फिर उसकी एटॉमिसिटी लेफ्ट हैंड साइड में,
एटॉमिसिटी लेफ्ट हैंड साइड में, और उसी की एटॉमिसिटी राइट हैंड साइड में कितनी होगी ये भी देखना है, ठीक है, RHS। समझिए, तो एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। एटॉमिसिटी लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 2, इट्स 2, वी विल राइट 2। ओके, 2 एटम है यहाँ पर। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो विल राइट 2, सो इट्स 2। देखो बैलेंस है, दोनों बराबर है ना, बैलेंस। ओके, एलिमेंट में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, लिक्विड गैस हम बाद में करेंगे अजीत, पहले हम इतना समझते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करना है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग। फिर लिक्विड गैस भी हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, उसको भी लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, देयर आर 2 atoms of oxygen for 1 molecule, so here oxygen will be 2 with the 2 atoms। okay, now ऑक्सीजन यहां पर कितनी है प्रोडक्ट में, जस्ट 1। तो यहां पर, तो देखो यहां पर हियर वी हैव द हाइड्रोजन बैलेंस्ड, दोनों 2-2 है, 2 एटम्स है दोनों के, तो बैलेंस्ड है। बट ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, राइट, ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड। यहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहां पर 2 एटम है, तो ऑक्सीजन इज डेफिनेटली नॉट बैलेंस। तो कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा, राइट, बैलेंसिंग हो जाएगी, इट विल बी बैलेंस्ड। तो बट बैलेंस कैसे करते हैं, हम 2 को यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करा सकते ऐसे बीच में, प्रोडक्ट क्योंकि मल्टीप्लाइड है ना, दोनों प्रोडक्ट है, तो उसके या तो एंड में मल्टीप्लाइड हो गया या तो बिगनिंग में, राइट, वी कैन नॉट राइट दैट, सो वी विल राइट इट लाइक दिस, ऐसे लिखेंगे इसको, हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये ऐसे बैलेंस्ड होगा, इट विल बी बैलेंस्ड लाइक दिस। मैं फिर से बता रहा हूं, याद रखिए O2 डायरेक्टली मत लिख देना आप, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट में है उसको सेपरेट करके थोड़ी ना लिख सकते हो, आपकी क्वांटिटी बढ़ा दो आप, राइट, यू कैन नॉट जस्ट इंक्रीज द क्वांटिटी लाइक दैट, सो यू विल इंक्रीज 2 विद दिस, लाइक दिस, ऐसे बढ़ाएंगे हम, ये बढ़ गया। अब देखो यहां पर 2H2O बन गया, तो यहां पर हाइड्रोजन तो 4 हो गया ना, या इफ यू रिमेंबर हाउ डू वी यूज्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, कैसे करते थे, तो हाइड्रोजन अब तो 4 हो गया, अगर ये जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई जाएगा अंदर 2, तो कैसा दिखेगा ये H2O, ये ऐसा हो जाएगा ना, अब तो हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 बन गया, बट यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो 4 हाइड्रोजन, दीज आर द 4 हाइड्रोजन्स, तो यहां पर 4 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो यहां पर भी ऑक्सीजन के ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 ऑक्सीजन के 2 एटम्स दिखेंगे, तो दिस इज हाउ वी विल बैलेंस, सो दिस इज हाउ वी विल बैलेंस, दिस इज हाउ वी विल बैलेंस, और ये ऐसा दिखेगा। डिड यू गेट इट, थोड़ा सा समझ में आया, जल्दी से बताइए, विल टेक मोर एग्जांपल्स, डोंट वरी, we will be taking more and more examples, so don't worry about that। थोड़ा सा मैं जल्दी से बताना फटाफट, yes, let's take more examples now। NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, NaCl, चलिए NaCl का एग्जांपल लेते हैं, इसकी जगह पे आई जस्ट क्विकली टेक अ पिक्चर ऑफ इट, ओके, पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार, जिसको मैं बाद में शेयर कर सकूं आप सभी के साथ, ठीक है, so I'll quickly take a picture of it, I can share this later with everyone। चलिए आगे सोचते हैं, NaCl लेते हैं, ठीक है, तो Na is sodium is metal, so its atomicity will be 1, just 1, sodium is a metal, so its atomicity will be just 1। क्लोरीन is a gas और उसकी atomicity 2 है। कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी आपको याद करनी पड़ेगी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, समझ जाओगे, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, यू कैन थोड़ा सा यू कैन रिमेंबर दैट, मेमोराइज दैट, ओके। और बनता प्रोडक्ट क्या है, NaCl बनता है, क्यों बनता है NaCl, हमने समझा क्यों बनता है, वैलेंसी के थ्रू। अब इसका देखो एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पर मैं रब करके देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर हम Na लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एटॉमिसिटी में Cl आ जाएगा, राइट, यहाँ पर एटम्स काउंट करते हैं, दोनों के एटम्स कितने कितने हैं, ठीक है। चलिए, तो NaCl
रिएक्टेंट में 1 है, इट्स 1, एंड क्लोरीन इज 2, एंड क्लोरीन इज 2. तो हियर Na is 1 in the left hand side and chlorine is 2 in the left hand side. Okay, chlorine is 2 in the left hand side. Now how do we balance? right hand side में क्या है, दोनों 1 1 है, Na भी 1 है, सोडियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है. So we will write 1 1 here. So you can see Na तो balanced है, sodium is balanced here, but chlorine is not balanced. Chlorine is not balanced. Here is it's 2 atoms of chlorine and here it is just 1 atom of chlorine. So if you multiply 2 then it will be balanced. अगर multiply कर दे 2 का तो balanced. But we know that directly तो multiply कर नहीं सकते सिर्फ क्लोरीन में, पूरे प्रोडक्ट में multiply होगा तो कैसा हो जाएगा वो? It will be like this. It will be like this. 2 लिख दिया हमने तो 2 NaCl बनेगा. लेकिन जब हमने 2 लिख दिया यहाँ पर तो क्लोरीन तो 2 सही हो गया, क्लोरीन 2 सही हो गया, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन सही है, ठीक है. बट Na के भी तो 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हियर वी विल हैव टू मल्टीप्लाई 2. तो ये भी आप बैलेंस हो गया. अब देखो मैच करो, 2 सोडियम के एटम्स हो जाएंगे, करेक्ट है, 2 एटम्स सोडियम के, 2 एटम्स क्लोरीन के. यहाँ पर भी देखो 2 एटम्स सोडियम के, 2 एटम्स क्लोरीन के, बिकॉज जब 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो दोनों में 2 2 जाएगा. क्लियर हुआ? इजी है, समझ में आया थोड़ा सा? यस, क्विकली लेट मी नो if you have understood. Everyone, did you get it? Yes guys, we can take one more example if you want. थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? चलिए थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, समझिए. चलिए, I'll just put this off and we'll take one more and the bigger example than this. Okay, here we go. I'll share my screen again and we'll take bigger example than this. Okay, ये हमने बैलेंसिंग सीख लिया यहाँ पर. Okay, we are going to go ahead. We are going ahead. Okay, here we are going to take a bigger example. चलो समझते हैं. ये फेरस है, फेरस और वाटर के साथ रिएक्शन है, Fe का आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन है, तो फेरस ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बन रहा है, O ऑक्साइड बताएगा, और हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड. सो वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बैलेंस दिस इक्वेशन. ठीक है, समझिए यहाँ पर बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है. फेरस देखो मेटल है तो उसकी एटॉमिसिटी 1 है, फेरस की मेटल है तो उसकी एटॉमिसिटी 1 है. वाटर की एटॉमिसिटी क्या होती है? 3 होती है. कैसे 3 होती है वाटर की एटॉमिसिटी? चलिए इसको हम बोर्ड पे लिख के समझते हैं, बोर्ड पे हमारा थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा समझना. वी विल राइट दिस इक्वेशन ऑन बोर्ड एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो वी विल राइट दिस इक्वेशन ऑन बोर्ड एंड अंडरस्टैंड दिस बेटर. चलिए जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल राइट दिस इक्वेशन ऑन बोर्ड. चलिए, I'm going to write this equation on board and we'll get it clear, more clear. Can you all see the course video? Okay, I have to stop this. Okay, can you all see this? I'll just quickly wrap this up. Okay, so the equation was Fe, iron is reacting with hydrogen, sorry, water, and what was forming? Ferric oxide. Ferric means 3 है तो ferric आता है basically, और oxide O4 plus hydrogen is releasing. Okay, और we have to balance this equation. तो पहले समझते हैं कि कोई भी टर्म क्यों आता है और कैसे आता है. ठीक है, पहले ये समझते हैं. Fe एक मेटल है. क्या है? एक मेटल है. Iron is a metal, so its atomicity is 1. Iron is a metal, its atomicity is 1. That's why it's just written as 1. Okay, यहाँ पर अकेला ही लिखा गया है, एक ही एटम के साथ मॉलिक्यूल कंप्लीट कर रहा है. वाटर का समझ लेते हैं थोड़ा सा, वाटर का. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस हियर. वाटर क्या कैसे बन रहा है? एक हाइड्रोजन से और एक
ऑक्सीजन के दो दो एटम्स के साथ हाइड्रोजन बना, राइट? हाइड्रोजन इज फॉर्म लाइक दिस। तो जब हमने हाइड्रोजन को लिखा तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 एटॉमिसिटी और ऑक्सीजन की 1 दिख रही, तो ओवरऑल वाटर की जो एटॉमिसिटी हमें दिखेगी वो 3 दिखेगी। समझना ये जरूरी है। 3 विल बी द एटॉमिसिटी ऑफ द वाटर हियर, ठीक है? ये हमने समझा कि कैसे आता है, H2O कैसे आता है, ये भी हमने सीखा। ओके, एंड हाउ डू वी बैलेंस दिस? ये 2H2O बाद में बन जाता है, राइट? जब बैलेंसिंग करते हैं, तो अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है? बस समझते हैं, ठीक है? तो पहले समझते हैं, ठीक है? अभी इतना समझ में आया, तो अभी हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। तो हम पहले इसके लिए एक टेबल बना लें, एक स्मॉल टेबल बना लेते हैं, ठीक है? एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं? आयरन है Fe, फेरस, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बस 3 ही एलिमेंट है इसमें। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्वड, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितना एटॉमिसिटी होगा ये देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में एटॉमिसिटी कितनी होगी ये देखना है। कितने एटम्स है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का कितना है? जस्ट 1, विल राइट 1 हियर। Hydrogen is on left hand side, 2 hydrogens, 2 atoms of hydrogen. Oxygen is just 1, so we will write just 1. Guys, are you getting this? थोड़ा समझ में आ रहा है? क्लियर है? Or is there any doubt? You can ask me right now only. I will just keep it this only, like this only. Guys, are you getting it? How am I balancing the equation? Atomicity देखना है बस, कितने एटम्स यहाँ पर इंक्लूडेड है रिएक्शन में, ठीक है? चलिए, राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं? Fe के वी हैव 3 एटम्स ऑफ आयरन, राइट? सो विल राइट 3 हियर। देन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2, सो हाइड्रोजन वी विल राइट 2 हियर, राइट? वी विल राइट 2। ऑक्सीजन आर 4, सो विल राइट 4 हियर। अभी देखो ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन इज बैलेंस कंप्लीटली, 2 एटम्स यहाँ पर, 2 एटम्स यहाँ पर, बिल्कुल बैलेंस्ड है। बट आयरन का तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पर 4 है, तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 बन जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4 बन जाएगा। मतलब दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस। तो Fe को कहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है? रिएक्टेंट में, बिकॉज वहां पर तो 3 ऑलरेडी है, तो रिएक्टेंट में ही बैलेंस करने की जरूरत है इसको। तो वी विल राइट इट लाइक दिस, 3Fe। अभी हो गया बराबर, 3Fe। तो यहाँ पर Fe3 मिल रहा है, तो 3Fe कर दिया हमने, ठीक है? ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है? 4 बनाना है ऑक्सीजन को, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन 4 एटम्स के फॉर्म में है, तो इसको भी, इस ऑक्सीजन को भी 4 बनाया था। इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा, दिस विल बी रॉन्ग, ओके, दिस विल बी रियली रॉन्ग। सो हाउ विल यू राइट दैट? कैसे लिखेंगे हम इसे फिर? जब ये गलत होगा ऐसे लिखना, तो कैसे लिखेंगे? बाहर लिखेंगे उसके, ठीक है? कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट लाइक दिस, 4 ऑक्सीजन। तो ये कंप्लीट हो गया, 3Fe एंड 4 ऑक्सीजन। दिस इज क्लियर। बट यहाँ पर 4 ऑक्सीजन बनते ही हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन तो अब 8 बन गया, हाइड्रोजन हैज बिकम 8, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है? 2 ही है, तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 8, और इसमें भी 4 हो गया, तो ये भी क्या हो गया? 8। Now this equation is completely balanced. Have a look and tell me if you have understood this. I will just quickly take a picture of it so that I can share that later with you all. Guys, have a look and let me know if this is clear. आया समझ में सभी को? Clear? So this is how we will be balancing the equation. We can take more examples. Just give me a second. I'll share the PPT again, and I have taken all the pictures, okay, with me. So I will share that later also. Don't worry. So this is how we will balance the equation. Another is writing the state form. State मैंने बता दिया। यहाँ पर एक और चीज आती है, मैं एक और चीज अभी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर मैं एक और चीज बताने वाला हूँ जल्दी से फटाफट। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसको S लिखेंगे, सॉरी गैस लिखेंगे, G लिखेंगे, सॉरी माय बैड, इसको हम G लिखेंगे, G के फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टेट कैसे लिखना है हमें ये भी मैं बता देता हूँ फटाफट। ऑलरेडी मैंने बता दिया क्विकली, आई जस्ट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
So this is S. Oxygen is, sorry, again I wrote G, S only. This is gas, G. This is also gas, G. H2O is liquid, तो we will write L. This is how we will write state. कैसे रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन को, कैसे हमें उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है, तो दिस इज हाउ वी विल राइट. ओके, सो आई थिंक दिस इज हाउ वी विल राइट. एक सॉलिड को S से, लिक्विड को L से, गैस को G से, और एक्वस को वी विल राइट विद द AQ. Okay, so this is for today's class. I'm going to show you something here, one more thing here with the textbook only. Just quickly, give me a second. I will share the another screen here. Okay, here we go. So I want you all to have a look here. सिल्वर नाइट्रेट पे ध्यान दो. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है. वोटर, जो वोटिंग होती है तो उसमें जो इंक लगाई जाती है फिंगर्स पे, तो दैट इज सिल्वर नाइट्रेट ओनली. दैट इज सिल्वर नाइट्रेट. You can google it more. You can google it and have a more knowledge on what are the different uses of this. Okay, so this is here. हाँ, so what I want you to understand here is steps here. जो अभी हमने ऑलरेडी हमने सीख लिया एक ही बार में ही, स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. तो हमने ये जो हमने सीखा कि टेबल कैसे बनाना है. राइट, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम्स होंगे वो लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जितने भी एटम्स होंगे वो लिखेंगे, एटॉमिसिटी लिखेंगे, और वी विल बैलेंस दैट. तो यहाँ पर a few steps are given here, like 4-5 steps. I want you all to read it once on your own. Okay, till here. तो जिससे थर्सडे क्लास में we will have 2 classes on Thursday. So on Thursday's class we can start with the types of chemical reactions. So will you be able to complete this, guys? Will you be able to complete this till here? Just have a look here and let me know. Just till here only. So एक बार बैलेंसिंग अगर आपको एक बार आ गया ना, तो आपको केमिकल रिएक्शन को गलत नहीं होगा आपसे. You won't make mistakes in a chemical reaction equation. Okay, you won't make mistakes. So I hope you will get this clear. So just a second, I'll just pause the recording.